Welcome to the second day of this International Temples Expo. This one? Hello? Is that fine? So welcome to the second day of this International Temples Expo, Convention and Expo. After the speeches yesterday of all the dignitaries, it is very, very difficult to create a similar kind of interest in whatever we do today. Because the speeches were so inspiring, they were so motivating, so insightful. Making a presentation of the services that we offered becomes very challenging. But however, this is the company that we have. Our services are all very important for temples as an infrastructure, and therefore it becomes very important for me to come here and share with all of you the kind of services that we are offering. I am going to have a presentation which is not very lengthy. Purposefully, I have kept it a little short. The aspects that I want to cover into this presentation is what we are as a company. We are Crystal Integrated Services Limited. We are India's one of the largest facilities management company. We employ more than 50,000 people all across the country. We have more than 21 branches, right from Dehradun to Kanyakumari. We service more than 300 customers all across the country, and we manage more than 700 sites for these customers. So obviously, we bring to the table a great lot of value addition to temples as an infrastructure. Infrastructure is of various types. There is a commercial infrastructure, there is airports, there are docks, ports, railway stations, offices, hospitals, schools, warehouses, manufacturing units. And we have an experience of more than 23 years of managing them through our back office team of 300 talented people. How a temple can make use of a company like us is what I am going to very briefly discuss in today's presentation. I'm going to take proper precaution that it doesn't become a very heavy business service providing presentation, because all of you may get bored. So therefore, I will run through this in a very diligent way and try to make it as interesting as possible. To begin with, I would like to thank the International Temples Convention and Expo for giving Crystal the opportunity to be here and standing in front of you and addressing you, the temple representatives who've come from all over the country. Also would like to thank the chairman of the International Temples Convention and Expo, Sri Ladji. His speech yesterday was definitely extremely inspiring for all of us. Would also like to thank Mrs. Neeta Lad from Antyodaya Pratishthan to make this convention happen. It is one of its kind. It is the first. It had its own challenges, I'm sure, but the way the team has put everything together and with the enthusiasm that you have put in by attending to this, I think the next 2 days are also going to be similarly interesting. So try to begin this presentation here. Every company has a focus, every company has a vision which drives it very powerfully over the period of time, because there is definitely no time how long the company can sustain. Every promoter, every board of the company would like it to sustain eternally and carry on generations and generations with the good work. So, हमारा vision भी यही है to emerge as the most preferred partner for our valuable customers to secure, maintain and manage their valuable assets. Like any infrastructure, these assets are very valuable and we aspire to be their preferred partner to maintain them for years and years. Our strategy is very simple. We want to forge new alliances to harness technologies. We want to leverage trends into our new products, and utilize the existing customer base for new services. 2 minutes on this slide. Yesterday,
our Honorable Shri Sir Sangachalak ji mentioned many things that we do as our bread and butter. The best of it is cleanliness, sanitization, security, and he said that all these are very important things. Utilizing existing customer base for new services. Also, the speeches of dignitaries along with Mr. Trivedi also, it has also given a new focus, because yesterday was a day as a service provider, we were able to understand what the focus is of the temple management committees and trusts, especially from the speeches of the TTD CEO, Sri Reddy ji. So many things that he's been doing, and he has a certain focus. Same way, the respected CEO of Sri Kashi Vishwanath Ji Math, when he explained how this Varanasi was developed and the infrastructure which was created, वो सब कार्य करने में इतनी tremendous willpower, whether it was administrative, political, उसके पीछे का पैसा and public का उसमें का interest और involvement, ये सब ने हमको भी एक अलग focus दिया है going forward as to जो हमारी services है, how we can bundle it to provide the temples in a way that it becomes convenient for them, becomes affordable for them, and at the end of the day becomes convenient for the devotees. ये temple जो आप भी represent करते हैं यहाँ पे, ये TTD और श्री काशी विश्वनाथ जी के साइज के ही नहीं है और उनकी व्याप्ति के नहीं है, बट छोटे, मीडियम, सेमी लार्ज और लार्ज है. तो सर्विसेज का ये प्रेजेंटेशन आप अगर देखेंगे तो प्लीज़ इतना आप मत समझिए कि हम तो लार्ज टेम्पल नहीं है, हम तो मीडियम साइज़ है, तो हम कैसे अफोर्ड करें या हमारे लिए ये नहीं है. ये सभी के लिए है. और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वी आर फोकस्ड ऑन कस्टमाइजेशन ऑफ आवर सर्विसेज. आपकी टेम्पल की साइज़, आपके पास दर्शन करने के लिए आने वाले डिवोटीज़ का नंबर कोई भी हो, अगर हम और आप बैठ के बात कर सकते हैं तो आपके लिए कुछ सूटेबल और टेलर मेड सर्विस हम डेफिनेटली दे सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इसमें डिवोटीज़ का दर्शन कैसे हो, यही हमारी भी फोकस रहेंगे. ये तो मैंने अभी जस्ट मेरे इसमें बताया ही है. ये भी मैंने टच किया अभी. हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप में हमारे 3 सबसे अहम कंपनियां हैं. ये ग्रुप हमारे चेयरमैन साहब ने और उनकी फैमिली ने 2000 में इस्टेब्लिश किया था. 2000 से लेके आज 23 इयर्स में, ज़ीरो से लेके आज हम 686 करोड़ का टर्नओवर है और इंडिया में वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज. ये टर्नओवर और क्रिसिल बी प्लस रेटिंग बताने की ज़रूर इसलिए है कि आप जब भी किसी कंपनी को काम देते हैं और उन पे आप विश्वास रखते हैं कि वो आपके टेम्पल और उसके आजू बाजू का परिसर की देखभाल कर सकेंगे, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि एज अ कंपनी हम वो देखभाल अच्छी तरह से कर सकेंगे. और ऐसी कोई भी परेशानी एज अ कंपनी हम नहीं देंगे आपको जो आपको हेडेक बन जाएंगी कि यहाँ डिवोटीज़ को संभालने का और उनको एक कन्वीनियंस देने का आपके पास हमेशा स्ट्रेस रहता है. तो ये मैं क्यों एक और स्ट्रेस लूँ ये फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को काम देके. तो इसलिए ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग केपेबल है, हम लोग कॉम्पिटेंट है, हम लोग फाइनेंशियली साउंड है और हम लोग टैलेंटेड और एक्सपीरियंस है. तो आपके टेम्पल की कई व्यवस्थाएं हमको आउटसोर्स करने के लिए हमारे ऊपर विश्वास रख सकते हैं. जो बाकी 4 कंपनी को 1 मिनट में करता हूँ. हमारी एविएशन में कंपनी है जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग करती है. हमारी फूड एंड बेवरेज की कंपनी है जो केटरिंग सर्विसेज देती है. हमारी जो केगो करके है, हमारी वोक्सारा टेक्नोलॉजीज़ करके एक कंपनी है जो आईटी में है, और हमारी कैश करके एक कंपनी है जो कंसल्टेंसी करती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करती है. आगे जाके ये कंपनीज़ के सब रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं. आप अगर किसी से चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. अभी ये हमारे सर्विसेज क्या है, हाउसकीपिंग, सैनिटाइजेशन सर्विसेज जो हर एक टेम्पल को चाहिए ही आज.
ट्रैफिक पार्किंग मैनेजमेंट, कई बार हम देखते हैं अंदर सुविधा बहुत अच्छी है पर लोगों को गाड़ियां पार्क कहाँ करें और अगर पार्क करें तो निकालें कहाँ से, यही बड़ी मुसीबत होती है। इसका एक प्लानिंग होना ज़रूरी है क्योंकि जो दर्शन करने आते हैं कई एज और कई एज ग्रुप में से उनका स्ट्रेस वहीं से चालू होता है। तो अगर हम लोग वहीं पे उनका स्ट्रेस अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो उसकी अंदर की सुविधा बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसके ऊपर टीटीडी के सीईओ साहब ने भी काफ़ी कुछ बात की है, उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाए हैं, वेस्ट में से बहुत कुछ उन्होंने कर दिखाया है। हम उधर की लेवल तक नहीं जाते पर जो टेम्पल में रोज़ जमा होता है वो वेस्ट को कम से कम मैनेज करके उसके अच्छी ठिकाने पे डिस्पोजल कैसे करें, अगर इसका भी व्यवस्था टेम्पल मैनेजमेंट के साथ हम कर सकते हैं तो उसमें हमारा बहुत अच्छा रोल हो सकता है। सिक्योरिटी एंड पिलग्रिम मैनेजमेंट, इसके ऊपर 1-2 मिनट और बात करना चाहूँगा। एक 30-40 इयर्स पहले पिलग्रिमेज पे जाने के लिए एक एज ग्रुप होता था, रिटायरमेंट के बाद लोग पिलग्रिम को जाते थे कि उनका एक एज का लाइफ का फोकस होता था कि रिटायर हो जाऊंगा तो मैं पहले ये पिलग्रिम सेंटर्स पे जाऊंगा, जैसे काशी विश्वनाथ हम आएंगे, हम वैष्णो देवी जाएंगे। बाद में अभी के दौर में 1-5 साल से जो डिजिटल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हर एक टेम्पल की अपनी अपनी वेबसाइट आ गई, वेबसाइट पे टेम्पल के महत्व आ गए हैं, हिस्टोरिकल उनकी स्टोरीज आई, वो जो टेम्पल जिन भगवान का है उनके ऊपर अलग अलग राइटअप्स आए, बुक्स आए। अभी जनरेशन बदल गई, अभी ये 58 के ऊपर की नहीं रहे, अभी स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूथ को भी जाके देखना है कि ये मंदिर है क्या, और इसके आर्किटेक्चरल, लोग आर्किटेक्ट देखने आते हैं, वो सिटी देखने आते हैं। आज यहाँ पे वाराणसी में मंदिर में दर्शन करने आते हैं पर गंगा आरती का फील लेने आते हैं। अभी ये हुआ कैसे, ये तो काफ़ी साल से होता था, बजा आज डिजिटल मीडिया ने जो अच्छा ही किया है, आज जो अपना मंदिर में आने वाले दर्शन करने के लोगों की एज ग्रुप कंप्लीटली बदल गई है। इसकी वजह से जो पिलग्रिम के डिवोटीज की संख्या मल्टीप्लाई हुई है। तो अगर ये संख्या मल्टीप्लाई हुई है, एज ग्रुप बदल गया है, तो हमको क्या सुविधा देनी चाहिए, और ये एज ग्रुप को केटर करने के लिए टेम्पल मैनेजमेंट कमिटीज़ ने अपने अपने टेम्पल में क्या बदलाव करने चाहिए। कुछ है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो हमने देखे हैं वो तो टेम्पल मैनेजमेंट कर ही देती है, बट पिलग्रिम का टेम्पल के प्रीमाइसेस में एंट्री, दर्शन और उनका एग्जिट, और वो जो वक्त बिताते हैं आजू बाजू के परिसर में जो टूरिज़्म के लिए बेनिफिशियल है, उसका मेंटेनेंस और उसकी मैनेजमेंट कैसे हो, इसका सॉल्यूशन देने के लिए क्रिस्टल जैसी कंपनी आपके साथ जुड़ सकती है। और मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि इस मैनेजमेंट के लिए आप क्रिस्टल को उस नज़रिए से देखें। ये जो यहाँ पे गेस्ट हाउस मैनेजमेंट है, ये हर एक के गेस्ट हाउसेज है, जैसे 8000 गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं, इसके ऊपर मैंने 2 स्लाइड्स और बनाई हैं, तो मैं इसके बारे में आपको आगे जाके बता दूंगा। और यही हमारा मूल है, आवर टेम्पल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज क्लब्ड विद द लार्जेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। हमने टेम्पल मैनेजमेंट का ऑलरेडी काफ़ी काम किया है जो अलग स्लाइड में है, और हम गवर्नमेंट में अलग अलग सेंट्रल और स्टेट और प्राइवेट काम भी करते हैं। तो एक गवर्नमेंट के लार्ज इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करना, एक कॉरपोरेट लार्ज इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करना, और फिर टेम्पल्स को मैनेजमेंट करना, आपको क्रिस्टल के पास एक कंप्लीट क्या कहते हैं, होलिस्टिक आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वहाँ पे। ये कुछ टेम्पल्स की केस स्टडीज़ हैं जो हमने किए हैं, और वी वर वेरी ब्लेस्ड that these temples shortlisted, selected us through a various process, and at the end of the day trusted with their various managements. हर एक टेम्पल में जो हमने सर्विस दी है वो अलग अलग रूप की है। यही आपको ये समझाएगा कि हमारी एक्सपर्टीज़ सिर्फ एक कुछ सर्विस में नहीं है, बट हमारी एक्सपर्टीज़ अलग अलग सर्विसेज को बंडल करके आपको जिसकी ज़रूरत है वो सर्विस बेस्ट आपके मंदिर तक पहुंचाना।
अभी हाल ही में ये तो शुरू हुई है लास्ट ईयर, ये श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति उज्जैन के लिए हमारे नसीब में ये काम आया है भगवान की कृपा से। और यहाँ हम लोग, ये 2 साल का है, 16 जून को चालू हुआ है, 14 जून 2025 तक है ये। और ये नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। किस लिए? क्योंकि 500 लोग यहाँ पे हैं और इसका पूरी सर्विस जो है हमारी, ये उसकी पिलग्रिम मैनेजमेंट की है। प्रोवाइड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस। अभी सिक्योरिटी जब भी टेम्पल देखता है वो भी अलग अलग तरह की होती है। यहाँ की जो सिक्योरिटी है, ये पिलग्रिम्स को अंदर जाके दर्शन करके उनको एग्जिट करते, उनकी वो जो चलने का प्रोसेस है वो कन्वीनियंट करने की है। यहाँ पे उसका लेबल सिक्योरिटी किया है, बट दिस इज मोर ऑफ देयर कन्वीनियंस मैनेजमेंट। तुलजा भवानी ट्रस्ट, ये भी लोगों को पता होगा, मुझे मालूम नहीं है अगर तुलजा भवानी से यहाँ पे कोई मेंबर्स आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। ये भी हमने 3 साल काम किया हुआ है। और ये भी मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग मैन पावर सिक्योरिटी सर्विस, ये एक अलग ही सर्विस है। आज मैकेनाइज्ड मैन पावर, आज कुछ टेम्पल का परिसर ही बड़ा रहता है, आप कितने लोग डालेंगे और उसमें फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा लगता है, उसको कितने साफ़ करेंगे। तो इसलिए आज नए नए मशीनरीज़ है, नए इक्विपमेंट है, तो लार्ज परिसर जो है वो मशीनरी और इक्विपमेंट को डाल के हम एकदम ब्यूटीफुल वो मंदिर रख सकते हैं 24/7। तो तुलजा भवानी में हमारी ये सर्विस है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान, कोई भी सर्विसेज की कंपनी हो या कोई भी हो, बड़े बैंकिंग सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में, हर एक का भी एक एस्पिरेशन रहता है कि ऐसे देवस्थानों में हम काम करें। हमारा भी एस्पिरेशन है कि हम काशी में काम करें, वैष्णो देवी में काम करें और हर एक बड़े देवस्थान, छोटे देवस्थान में काम करें। बट इधर भी हमको 2014 में ये अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी कमेटी ने इवैल्यूएट किया और उधर वो देवस्थान में उनकी गेस्ट हाउस मैनेजमेंट का काम हम पे सौंपा गया। हमने बहुत अच्छी तरह से किया ये 2 साल काम। 2026 लोग थे यहाँ पे, और यहाँ पे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, हाउसकीपिंग, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, मेंटेनेंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अभी गेस्ट हाउस में आप अगर दूसरे भी टेम्पल में आप भी जाते हैं, गेस्ट हाउस में रहते तो कभी दिखता है वो पानी लीक हो रहा है, कभी एक आधा आप गए सब ट्रेन वेन में से आके लाइट ही नहीं चल रहा है, कहीं पानी आ ही नहीं रहा है। अभी इसके लिए टेम्पल करेगा क्या? ये तो दर्शन करने आए तो उनको कंफर्ट तो देना है। तो ये सर्विसेज भी टेम्पल्स आउटसोर्स करती है कि आप एक बेल दबाएंगे तो हमारे आदमी आएंगे और वो जो है आपकी गेस्ट हाउस की रूम उसको ठीक ठाक कर देंगे आपके लिए। श्री शिरडी बाबा साईं बाबा देवस्थान, वहाँ पे भी हमने सर्विस प्रोवाइड की। वहाँ पे हाउसकीपिंग, वहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस और दर्शन, हॉस्पिटल्स, गर्ल्स स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, पार्किंग लॉट्स। आप यहाँ पे यही देखेंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर्विसेज अनगिनत है और जो दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए हम उसको प्रॉपरली प्लान करके आपको दे सकते हैं। श्रीमंत दगड़ू हलवाई ट्रस्ट हमारे पूना में, महाराष्ट्र में है। इसको हम आज 1 दशक से, जब भी एक तो उसका दगड़ू हलवाई उनका मंदिर है जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी है, और हमारी कंपनी और एक यहाँ कार्यक्रम करती है जो 10 दिन गणेशोत्सव होता है, जो महाराष्ट्र में कहीं दशकों से चला आ रहा है। उसमें भी लाखों की तादाद में लोग आते हैं और आज जग भर से आते हैं। कई लोग तो यूएस से, लंदन से सिर्फ वो दर्शन करने के लिए 1 दिन आते हैं और वापस चले जाते हैं। उसकी पूरी सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट हमारे पास है। जो नासिक में 2015 साल को कुंभ मेला हुआ, तो उसमें भी हमने काफ़ी कुछ काम किया है। गुरु नानक जी की सुल्तानपुर लोधी में जो उनका सबसे बड़ा वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे 6000 लोग के साथ हमने इनिशियल 12 डेज में 1 लाख श्रद्धालु वहाँ पे आते थे। प्रकाश पर्व जो 5 to 15 नवंबर में था, उधर 5 लाख लोगों ने दर्शन किया और बाकी 16 से 20 नवंबर तक कम से कम 2-3 लाख लोग वहाँ पे आते थे।
वहाँ पे हमारी काम की व्याप्ति तो बहुत प्रचंड थी. Provided sanitation and housekeeping services at celebrations for this 550th birthday of Shri Guru Nanak Dev Ji at Sultanpur. ये हमारे कंपनी के पूरे आजकल के कार्यकाल में फेदर इन द कैप ही रहा है. हमारे कंपनी में ये 2 मिनट आपको इसके बारे में ही बोल दूं. एक सर्विसेज है जो आप हमसे लेंगे या और भी कोई कंपनी से लेंगे, पर वो सर्विस बराबर हो रही है नहीं हो रही है, ये आपको अगर देखना है तो इसके लिए हमने एक मोबाइल पे एप्लीकेशन भी तैयार किया है. सर्विसेज हमारी हो तो अच्छा है, अगर सर्विसेज नहीं हो पर आपने किसी को अभी ऑलरेडी सर्विस दी हुई हो तो ये ऐप के ज़रिए वो कंपनी आपकी दी हुई सर्विसेज आपके पैरामीटर्स पे रोज एवरी आवर बराबर मैनेज करती है कि नहीं, ये आप कमेटी ऑफिस में बैठ के आपके ऐप पे से समझ सकते हैं. हर एक देवस्थान का अपना अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सर्विसेज का, और एक सर्विस लेवल उनका रहता है. ये ऐप्स के माध्यम से आप वो सर्विस लेवल रोज मॉनिटर कर सकते हैं. इनफैक्ट आप एवरी मिनट मॉनिटर कर सकते हैं. ये कुछ हमारे कस्टमर्स हैं. इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए कल मैं जब भी प्रेजेंटेशंस देख रहा था, टीटीडी के सीईओ साहब थे, यहाँ के भी सीईओ साहब थे, और बाकी लोगों में भी जनरली जब भी चर्चा करते हैं टेम्पल में एक मिथ है, एक इशू आता है कि अगर हम किसी बड़ी कंपनी को काम देंगे तो क्या वो सब बाहर के लोग लेके आएंगे हमारे पास, और फिर हमारे लोग क्या करेंगे, बाहर के लोग आएंगे 2-2 साल काम करेंगे. ये मिथ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ. क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में और क्रिस्टल ग्रुप में हम लोग का पूरा फोकस इस पे है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, भले वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, SEZ हो और देवस्थान हो, हमारा पूरी कोशिश यही रहती है कि उधर के देवस्थान की सिटी में या तो उसके आजू बाजू के परिसर में जो यंग लड़के लड़कियां हैं, हम उनको ट्रेनिंग देके, उनको ग्रूमिंग देके, हम लोग उनको एम्प्लॉयबल यूथ बना के हम उन्हीं को काम पे रख के वही जगह की इकोनॉमी बढ़ाने का प्रोसेस हमारा एजेंडा है. एक बार जो कॉलेज से बाहर आके अपने गर्ल्स और बॉयज़ जब भी कुछ सीखते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, तो 2 चीज़ होती है. एक तो हमारी सब सर्विसेज मैन पावर को लेके ही है. विदाउट मैन पावर सिर्फ मशीन लगती है बट उसकी क्वांटिटी कम होती है. जब भी आप हमको काम देते हैं, इतना ध्यान में रख सकते हैं आप कि उधर एम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ के परिसर के आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट, गांव, सिटी के ही यंग लड़के लड़कियों को देते हैं. अगर एक प्राइस आप हमको देते हैं तो वो कॉस्ट अल्टीमेटली 86% ऑफ हमारी सर्विसेज वेजेस में ही जाती हैं. तो वो बच्चों के ही पास वो सैलरी जाती है. इससे वो मंदिर के आजू बाजू के परिसर की इकोनॉमी बढ़ती है और घर का पैसा घर में ही रहता है. मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं. हमारी सर्विसेज कवर की मैंने, बाद में हमारा एक्सपीरियंस कवर किया है, हमारा विजन आपके साथ शेयर किया. आई हैव ऑल्सो शेयर्ड द कस्टमाइजेशन दैट इज़ आवर ब्यूटी. You tell us any services that you aspire to deliver to your devotees and we will be able to bundle them. I also explained that giving or outsourcing a particular service to our company means giving employment to the youth in your districts and in your cities and your villages. And I think with this, I would like to once again say my heartfelt thank you to all of you for patiently listening. I have my team, we have a stall there. किसी को भी और जानकारी चाहिए तो we will be very, very happy to meet and discuss with you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. That was a very, very insightful chat. मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर प्रसाद लाड जी को to please felicitate संजय जी. गिरीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी.
Sanjay ji, if you can please join us right in the center of the stage. दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं